lump sum payment for computer software along with hardware. Now, in order to grow technologically, many a times a country may require some advanced computer softwares or some equipments. So let's say, for example, I'll tell you, in telecommunication, there were huge amount of equipments which comprised of hardware plus software that were required. India wanted to grow, and therefore they wanted that the telecom sector should grow. So they provided some tax benefit to certain kinds of software which may be imported. If these softwares were imported along with the hardware under a government approved policy, then there was an exemption that if you were making some lump sum payment for such software, it will not amount to royalty. Let's look at that. Lump sum royalty payments made by a resident. Now, it is not a case where one non-resident is making a payment to another non-resident. It is a case where a resident is making a payment to a non-resident. For transfer of all or any rights, including granting of a license, in respect of, so if there was a transfer of all or any rights in respect of a computer software which was supplied by the non-resident manufacturer, so the condition is what? This person who is supplying should be a manufacturer. He should not be a reseller or some trader. It has to be the manufacturer along with computer hardware. So not only the software but hardware was to be provided as well. If together they were provided, the exemption was available. If it was provided only in isolation, this exemption was not available. Under any scheme approved by the government under Policy on Computer Software Export, Software Development and Training 1986 shall not be deemed to accrue or arise in India. अगर एक रेजिडेंट ने एक नॉन रेजिडेंट से कोई सॉफ्टवेयर लिया या उसमें कोई भी राइट्स थे जो कुछ या सारे राइट्स एक रेजिडेंट को ट्रांसफर हो गए फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट और इसके लिए एक लमसम रॉयल्टी पेमेंट की गई, लेकिन कब? तब जब ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ दिया और ये किसी पॉलिसी के अंडर था. जो स्कीम थी, इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस स्पेसिफिक पॉलिसी. Then the income from royalty on account of this software was not to be deemed or to accrue or arise in India. Now the question which comes up is, suppose एक रेजिडेंट ने जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है, ये रॉयल्टी हो गई. यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा है, बट मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ से रिलेशन में अगर ये एक बार रॉयल्टी हो गई तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अंडर सेक्शन 195 द रेजिडेंट हु इज मेकिंग अ पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट और इवन इन केस वेयर अनदर नॉन रेजिडेंट इज मेकिंग अ पेमेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, मतलब सेक्शन 195 में जो विद होल्डिंग टैक्स की लायबिलिटी होती है वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स दोनों के ऊपर होती है. तो एक बार ये पेमेंट रॉयल्टी हो गई, देन जो भी इसको पे कर रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर टैक्स विद होल्ड करे. यू कुड बी अ रेजिडेंट और यू कुड बी अ नॉन रेजिडेंट. इफ द पेमेंट फॉर द यूज or the right to use computer software falls within the definition of royalty as per the IT Act, the payer may be required to withhold tax under section 195. में क्यों यूज किया? एक्ट में तो रॉयल्टी हो गई, लेकिन ट्रीटी में भी रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रीटी में रॉयल्टी नहीं हुई तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. अगर इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो इस पे विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा. विदहोल्डिंग टैक्स का एक पूरा डिटेल चैप्टर है जहां हम ये लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को. लेकिन विदहोल्डिंग टैक्स तभी एप्लीकेबल होता है जब इनकम कोई टैक्सेबल हो. इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब वो एक्ट और ट्रीटी दोनों में टैक्सेबल हो. अगर इन दोनों में से एक में टैक्सेबल है, दूसरे में नहीं है, या इसमें टैक्सेबल है इधर नहीं है, देन विदहोल्डिंग टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, unless such consideration does not fall within the definition of royalty under the relevant double taxation avoidance agreement. Exemption from
TDS ऑन सॉफ्टवेयर पेमेंट्स। अब क्या हो सकता है कि कभी कभी, लेट मी जस्ट पुट दिस डायग्राम हियर एंड देन वी विल डिस्कस। क्या हो सकता है, मान लीजिए कभी एक फॉरेन कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है। ये सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर से एक सॉफ्टवेयर का ट्रांसफर होता है किसी इंडियन कंपनी को, और ये इंडियन कंपनी आगे किसी दूसरी इंडियन कंपनी को ये ट्रांसफर कर देती है सॉफ्टवेयर। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर टू द इंडियन कंपनी एंड देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर बाय द इंडियन कंपनी टू अनदर इंडियन कंपनी। क्वेश्चन ये होता है कि जब मान लीजिए ट्रांसफर हुआ सॉफ्टवेयर का, मान लीजिए पेमेंट रॉयल्टी हो गई अंडर द एक्ट एज वेल एज द ट्रीटी। इस इंडियन कंपनी ने इस पेमेंट पे TDS काट लिया। अब जब आगे इसने इसको बेचा, तब क्या ये जो इंडियन कंपनी 1 है, इसकी लायबिलिटी है TDS काटने की? इस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बार बार अगर TDS कटता तो सेम प्रोडक्ट पे काफी ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता, व्हेन इट मे नॉट मेक सेंस ऑल्सो। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई। सपोज इसने $100 का सॉफ्टवेयर भेजा, $10 यहाँ पे TDS कट गया, $90 इस नॉन रेजिडेंट को मिल गए। इस इंडियन कंपनी ने $100 का ये सॉफ्टवेयर खरीदा। मान लीजिए ये 10 का प्रॉफिट ऐड करके इसको $110 में इस इंडियन कंपनी 1 को बेच देती है आई को। अगर आई को 1 इस पे दोबारा से TDS काटता है, कितना? 10%, तो ये $11 बैठ जाएगा और नेट अमाउंट जो आईको को मिलेगा वो होगा $99, जबकि उसने पे किया है कितना? $100। कैसे 100? 90 फॉरेन कंपनी को और 10 इंडियन गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ TDS। तो ये बिजनेस ही अनवायबल हो जाएगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड करिए TDS सॉफ्टवेयर, एग्जेम्पशन फ्रॉम TDS ऑन सॉफ्टवेयर पेमेंट। इसमें कंडीशन क्या है? नो TDS अंडर सेक्शन 194J। 194J क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक पेमेंट है, इसमें 195 नहीं लगेगा। शैल अप्लाई ऑन पेमेंट मेड टू रेजिडेंट ट्रांसफरर। रेजिडेंट ट्रांसफरर आईको 1 ने आईको को पेमेंट करी है, पेमेंट मेड टू आईको फॉर एक्विजिशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी TDS नहीं कटेगा। फर्स्ट है, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J और 195 अंडर एनी प्रीवियस ट्रांसफर ऑफ सच सॉफ्टवेयर। जब एफको ने आईको को ये बेचा, तो अगर इन्होंने TDS ऑलरेडी काट लिया 195 में, फिर दोबारा काटने की जरूरत नहीं है। द सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड इन अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन बाय द ट्रांसफरर। इस केस में ट्रांसफरर कौन था? आईको। सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड, किसने एक्वायर किया? आईको 1 ने। मतलब जब आईको ने आईको 1 को ये ट्रांसफर किया सॉफ्टवेयर, इसमें कोई मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ये होना चाहिए। अगर मॉडिफिकेशन होगा तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। द ट्रांसफरी ऑब्टेन्स अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एज अबव अलॉन्ग विद द पैन ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरी कौन था? आईको 1। ये क्या लेगा? एक डिक्लेरेशन लेगा, किससे? ट्रांसफरर से। ट्रांसफरर कौन है यहाँ पर? आईको। क्या डिक्लेरेशन लेगा? कि टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एज अबव, मतलब या तो 194J में या 195 में टैक्स ऑलरेडी काट चुके हैं। आप सोच रहे होंगे 194J कब होगा? मान लीजिए आईको ने आईको 1 को बेचा और फिर आईको 1 ने आगे आईको 2 को बेच दिया। अब इस केस में ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आईको 1 ने या तो आईको में ये 194 में काटा हो या 195, और उसका पैन साथ में ले लेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 21/2012 डेटेड 13/6/2012।